تبرك وفروز المعيدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ بڑی اسپیڈ اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اٹھک بیٹھک نہ کریں, صرف 10 منٹ برداشت کر لو, اس کے بعد صلاۃ والسلام ہی ہوگا. کیونکہ آپ لوگ جان رہے ہو اب ٹیسٹ کا زمانہ ختم ہو گیا, ون ڈے کا دور نہیں ہے, اب خالی 2020 ہوگا. سمجھ رہے یا نہیں؟ اب 2020 ہوگا. 10 منٹ ایسا برداشت کر لو جس طریقے سے کہ جب کشتی جب ڈوبتی ہوتی ہے تو کشتی میں سوار ہونے والے سوچتے ہیں کتنی جلدی کنارہ مل جائے, تو اسی طریقے سے اب اسی کنارے پر آپ آ گئے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ دعائیں ہمیشہ لاسٹ میں قبول ہوتی ہیں. ہے یا نہیں؟ آپ لوگ کہاں ہے یا نہیں؟ آج ہم آمد رسول پر یہ محفل پاک سجائے ہیں. تڑپ کر بولو سبحان اللہ. اس کے آمد رسول کے موقع پر یہ محفل پاک سجائی ہے, اور بڑے خوش نصیب ہے لادھی پار کے لوگ کہ یہ محفل پاک ہر مہینے یا مہینے 2 مہینے پیچھے سستی ہی رہتی ہے. بڑے خوش نصیب ہو, کیونکہ اس محفل پاک کا سبب اگر پوچھنا ہے تو جس کو دیوبندی بھی سنی بولتا ہے اور جس کو بریلوی بھی سنی بولتا ہے, جس کو محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بستی اور جس گاؤں کے اندر مصطفیٰ کی محفل پاک سجائی جاتی ہے تو اس بستی سے بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے. اور صرف 1 اور 2 دن, 1 مہینہ اور 2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ سال بھر کے لیے اس بلاؤں, اس بستی سے مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے. لیکن آج لادھی پار کے لوگ بڑی ہی بدقسمتی کے مجسمے میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ جان رہے ہو کہ میاں پوری زندگی ہم نے سویا ہے, سو کر کچھ نہیں اکھاڑا ہے. تو کم سے کم آج رات میرا دعویٰ ہے کہ اگر تم نے جاگ کر مصطفیٰ کی محفل پاک سجائی ہوتی تو فخر سے کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جا کر کہتی پروردگارا ہم نے کچھ نہیں ادا کیا ہے, اپنی ماں کی خدمت کچھ نہیں انجام دی ہے, ہم نے اپنے ماں باپ کے کوئی فرامین پر عمل نہیں کیا ہے, لیکن بس اتنا ہے ہم نے اپنی ماں کا دودھ کا حق صرف اتنا ادا کیا ہے کہ آمد رسول کے موقع پر تیرے محبوب کی محفل پاک پوری رات بیٹھ کر سما. اس حق کے ساتھ رب کائنات تمہیں جنت دے دے گا, کیونکہ یہ بڑی معتبر محفل پاک ہے. تو آج آپ لوگ دیکھو کہ جس طریقے سے دنیا کی طرف بھاگ رہی ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. اور آج تو آپ لوگوں پر ناز ہونا چاہیے تھا, یہ آمد رسول کی محفل پاک ہے, کیونکہ جب مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہونے والے تھے, 12ویں شب تھی, تو آپ کی ماں سیدہ آمنہ نے بڑی پیارے لہجے میں کہا تھا, کیا تھا؟ کہا جب 12 ربیع النور کی 12ویں شب آئی ہے جو آج ہے, کہا جب وہ بڑی رات آئی ہے 12ویں شب کو آپ کی ماں نے کہا بڑی رات آئی ہے, فخرج منی نور, اور میرے جسم سے ایک نور آیا, میرا بیٹا محمد آیا, میرا بیٹا محمد آیا. تو اب اندازہ لگا لیجئے یہ تو آپ لوگ ہو
आपने इतनी बड़ी महफिल पाक सजाई है, न जाने कितने लोगों को दर्द हो रहा होगा और न जाने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उंगली उछालने वालों के पेट में इतना दर्द हो रहा होगा कि आखिर ये सुन्नी इतना रुपया क्यों लुटाता है। वक्त भी खुदा के महबूब के नाम पर लुटाता है, दौलत भी खुदा के नाम पर लुटाता है, आखिर ऐसा क्यों करता है। नादान जालिम तू तो हम पर फतवा लगा सकता है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलिएगा कि ये बरेली का मौलवी है, नबी की मोहब्बत में बोल कर चला गया है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बोले तो अगर तुम ये कह सकते हो कि वो इसके रसूल में कहकर चले गए, लेकिन नहीं नहीं, तुमको मालूम नहीं है। हमारा तो अकीदा ये है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अगर हमारे नबी की कोई शान और तारीफ पूछे तो कहीं और मत जाना, इमाम अहमद रजा की जुबान में कह देना कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो ऐब बस वे तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। देवबंदी और नजद की गंदी औलादो, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तुम खुशी और मनाने पर तुम पाबंदी लगा रहे हो, तो मुझे बताओ, हम तो इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, इमाम अहमद रजा ने नबी की मोहब्बत में खुशियां मनाई है और आज भी हम नबी की मोहब्बत में खुशियां मना रहे हैं। तुम हमारे ऊपर पाबंदी लगा सकते हो, इमाम अहमद रजा पर पाबंदी लगा सकते हो, तो मुझे बताओ उस खुदा पर क्या पाबंदी लगाओगे जिस वक्त रसूल की आमद आने वाली है, यानी 12वीं शब है, जिस वक्त आपकी माँ सैयदा आमना ने कहा था जब बड़ी रात आई है, फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से जब नूर मोहम्मदी आया है, मेरी आंचल में आया है, तो उस वक्त परवरदिगारे आलम ने बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमी को बुलाया है, ऐ जिब्राइल आज मेरे महबूब की आमद होने वाली है। तो बुलबुल सिदरा बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम क्या किया जावे। कहा तुमको पता नहीं है मेरे महबूब की आमद होने वाली है, 1 लाख फरिश्तों की जमात को ले लो और मेरे महबूब के घर की तरफ चले जाओ और ये 3 झंडे ले लो। एक झंडा जानते हो, 3 झंडा दिया है, तीनों के मकान बता दिए हैं, तीनों की जगह बता दी है, तीनों का अलम बता दिया है, कहा कहा तुम्हें गाड़ना होगा। बोले एक झंडा तुम्हें काबतुल्लाह पर गाड़ना होगा, दूसरा झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ना होगा, तीसरा झंडा सैयदा आमना की छत पर गाड़ना होगा। लेकिन अब यही से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं आपको टेस्ट दूं, वक्त नहीं है कि आपको बनने वाला इजहार करूं, लेकिन अब ये 2020 का वक्त है तो तुम्हें जो 20 ही 20 चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में मुझे एक जगह और भी मुझे जाना है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही तक कहूंगा कि इमाम अहमद रजा पर तुम पाबंदी लगाते हो, उस रब की जात पर क्या पाबंदी लगाओगे। कहा 1,24,000 कम 20 पैगंबरों की जमात को लेकर चले जाओ और ये 3 झंडे तीनों मकामों पर गाड़ देना। काबा एक रवायत ये भी है, एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया है। अब अंदाजा लगा लीजिए, अब एक झंडा सैयदा आमना की छत पर गाड़ा गया है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि काबतुल्लाह पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का झंडा गाड़ा जाता था और बैतुल्लाह पर हजरत इस्माइल की औलाद का झंडा गाड़ा जाता था, क्योंकि देखने में झंडा समझ में आ जाता था ये इस्माइल का इलाका है और ये हजरत याकूब का इलाका है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए, काबे पर भी झंडा नबीउल्लाह का है, बैतुल्लाह पर भी झंडा नबीउल्लाह का है। अब समझ में आ गया, काबतुल्लाह भी नबीउल्लाह का है, बैतुल्लाह भी नबीउल्लाह का है। अब हजरत जिब्राइल है, परवरदिगारे आलम से फरमाते हैं, ए परवरदिगारे आलम, एक ने हत्ता जाना होगा या तमाम फरिश्तों के साथ में जाना होगा या इकट्ठे होकर जाना होगा या अलग अलग होकर जाना होगा या जमात दर जमात जाना होगा या अलग इख्तियार करके जाना होगा। हजरत जिब्राइल ने जब इतना कहा है तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल तुमको
अलग तो अलग नहीं जाना है, एक एक करके नहीं जाना है, बल्कि जमात दर जमात तुम्हें जाना होगा। यानी आज भारत में उसको बोलते हैं कि जुलूस की शक्ल में तुम्हें जाना होगा, जुलूस की शक्ल में जाना होगा। पाबंदी तुम सुन्नियों पर लगाते हो, इमाम अहमद रजा पर पाबंदी लगाते हो, अगर पाबंदी लगाना है तो जिब्राइल पर पाबंदी लगाओ कि फरिश्तों की जमात को जुलूस की शक्ल में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही चले हैं हजरत जिब्राइल ने एक झंडा, हजरत जिब्राइल ने हर फरिश्तों के हाथ में एक झंडा दे दिया है, दूसरे हाथ में चराग दे दिया है, दूसरे हाथ में रोशनी दे दी है। अब हजरत जिब्राइल है सब फरिश्तों के साथ में जुलूस की शक्ल में चलते चले जा रहे हैं, चरागा भी कर रहे हैं, मुस्तफा के आलम को भी उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि हर फरिश्तों के हाथ में झंडा है, तो झंडा तो समझ में आ रहा है मेरा महबूब आने वाला है, झंडा तो समझ में आ रहा है ताहा यासीन आने वाला है, झंडा तो समझ में आ रहा है काफा या ऐन स्वाद आने वाला है, झंडा तो समझ में आ रहा है रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है, झंडा तो समझ में आ रहा है यतीमों का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है बेवाओं का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है काबे को पाक करने वाला आ रहा है। लेकिन ऐ जिब्राइल, ये हर फरिश्तों के हाथ में शमा कैसी है, हर फरिश्तों के हाथ में रोशनी कैसी है, हर फरिश्तों के हाथ में चरागा कैसा है। तो बुलबुले सिदरा पुकार कर कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम तेरे महबूब की आमद है, उस आमद की खुशी में हम रोशनी करना चाहते हैं, चरागा करना चाहते हैं, हम रोशनी करना चाहते हैं। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल इन सारी शमाओं को बुझा दो, मेरा आने वाला महबूब, वो महबूब आ रहा है, मैंने उसके चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, अगर एक नकाब भी उठा देगा तो पूरी दुनिया को रोशन करके इसलिए अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा है। बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं कि सब चमकतों से पाते हैं सब पाने वाले, चमकतों से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजा खाने वाले। लेकिन वो और लोग होंगे जो तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। लेकिन याद रखना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन जा रहा है, फरिश्ते जा रहे हैं, जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। आज नज़दीकी गंदी औलादे हैं जो मुस्तफा के जुलूस की आमद की खुशी में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा रही है। लेकिन अगर पाबंदी लगाना है तो फरिश्तों के सरदार पर क्यों नहीं लगाते हो, फरिश्तों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो, झंडे पर पाबंदी लगाते हो। तो याद रखना तुम हजरत परवरदिगार आलम पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते हो। अगर झंडे लगाना अगर ये नाजायज और हराम होता, परवरदिगार आलम क्यों झंडे का हुक्म देता, क्योंकि झंडा जानते हो झंडा जिसका जहां होता है हुकूमत उसकी वहां होती है। मुस्तफा का झंडा मशरिक में भी है और मगरिब में भी है। तो याद रखना पूरब भी मुस्तफा का है, पश्चिम भी मुस्तफा की है, मशरिक भी मुस्तफा का है, मगरिब भी मुस्तफा की है। सारी दुनिया में हुकूमत मेरे भैया नहीं है, और रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ जिब्राइल आमना के घर को बाद में तुम्हें जाना होगा, पहले जन्नत को सजा दे। जन्नत को कहाँ, जन्नत को सजा दो। क्यों सजाया? आमद रसूल, आमद रसूल के मौके पर, अपने महबूब आमद पर। तो कब कहा था? आज ही की रात कहा था, आज ही की रात कहा था। आज हमने अपने घर सजा लिए तो नजदीकी औलादे कहती है कि ये क्यों किया है। लेकिन याद रखो, खुदा से पूछो
जन्नत को दोबारा सजवा रहा है। जब जन्नत को पैदा किया था तो अल्लाह ने तब जन्नत को सजाया था। आज महबूब पैदा हुआ है, जन्नत वाला रसूल पैदा हुआ है, मालिक जन्नत पैदा हुआ है, तो आज जन्नत को सजा रहा है, आज जन्नत को सजवा रहा है। रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ जिब्राइल मिंबर रसूल को सजा दो और बीकाइल से कह दो कि खुतबा पढ़ मेरी वहदानियत का, क्योंकि तुम जान नहीं रहे हो। अल्लाह फरमाता है लौलका लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा करना मकसूद नहीं होता, मुझे मंजूर नहीं होता, न मैं धरती को पैदा करता, न मैं आसमान को पैदा करता, न ये तारे और गगन को पैदा करता, और मैं यहीं तक महदूद नहीं है, मैं अपने रब होने का भी ऐलान नहीं करना। आज मेरे महबूब की आमद मीकाईल मेरी वहदानियत का इकरार। आज मेरी वहदानियत का खुतबा दे दो, खुतबा दे रहे। वाह, अब उन 1 लाख फरिश्तों में हजरत इज़राइल भी थे। हजरत इज़राइल को जानते हो या नहीं? ये मलकुल मौत है। बोलिएगा, सबकी मुलाकात होगी उनसे, चाहे कमजोर हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, सबकी मुलाकात होगी, क्योंकि जब मुलाकात हो गई दोबारा जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी। जान रहे हो या नहीं? ये हजरत मीकाईल, ये हजरत इज़राइल है। सब फरिश्ते जब जाने लगे कहाँ? नबी के घर की तरफ, हजरत आमना की हवेली की तरफ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान की तरफ चलने लगे हैं, तो उतने में एक वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम वहीं ठहर जाते हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इज़राइल तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो हजरत इज़राइल इब्तिदा करते हैं, ये परवरदिगार आलम तूने ड्यूटियां सब फरिश्तों को दी है, लेकिन उन ड्यूटियों का अंदाजा अलग है। लेकिन आज मेरी ड्यूटी जो तुम जान रहे हो कि परवरदिगार आलम तू जान है कि तूने मुझे कितनी सख्त ड्यूटी दी है। किसी की गोद को खाली करना होगा, किसी के बुढ़ापे का सहारा उजाड़ना होगा, किसी के शौहर को, किसी औरत को यतीम करना होगा, किसी को बुलाना होगा, किसी को दुख देना होगा। तूने मुझे किसी जवान को मारने के लिए कहा है, किसी बूढ़े को मारने के लिए हुक्म दिया है। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इज़राइल खुशी मना लो। ऐलान कर दिया है, इज़राइल खुशी मना लो, मेरे महबूब की आमद है। जब मेरे महबूब की आमद है, अगर तू किसी की गोद उछालेगा तो याद रखना घर में मातम कदा होगा। अगर किसी को यतीम बनाएगा घर में गिरिया मसारी होगी। अगर किसी का सुहाग उतारेगा तो रोना और चिल्लाना चालू होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे महबूब की आमद हो कि किसी घर में रोना से धोना पड़ा हो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे महबूब की आमद हो कि घर में मातम कदा हो। जा, मैंने तेरी भी छुट्टी कर दी है, उन्हें भी अपने महबूब की आमद में जिंदगी की भीख दे दी है। वो रसूल की आमद की खुशी में मरने वाले को जीवन दान मिल गया, तो मुझे बताओ हम गुनाहगारों को जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? हम गुनाहगारों को जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? आप अंदाजा लगा लीजिए। अब हजरत जिब्राइल है, जुलूस की शक्ल में कहाँ जा रहे हैं? बड़ी आन बान के साथ में जा रहे हैं। तो रब्बे कायनात से इल्तिजा करते हैं, परवरदिगार आलम खामोशी से जाना है या मुंह बांध कर जाना है? तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, अगर कहो तो मैं 2 मिनट में रुक कर यहीं पर खत्म कर देता हूँ। सिर्फ मेरे 5 मिनट और रह गए हैं, क्योंकि मुझे 10 मिनट दिया गया है, 5 मिनट बोल लिया हूँ, 5 मिनट और रह गए हैं। लेकिन हजरत जिब्राइल इंतजार करते हैं, परवरदिगारा हम सिर्फ खामोशी से जाएंगे या कुछ बोलते हुए जाएंगे या कुछ पढ़ते हुए जाएंगे? अब जब इतना कहा है, परवरदिगार आलम फरमाता है, जिब्राइल आज तुम्हें वही लेकर नहीं जाना है, मेरा पैगाम लेकर नहीं जाना है, मेरा फरमान लेकर नहीं जाना है, मेरे खुतूत और चिट्ठी तुम्हें लेकर नहीं जाना है, बल्कि आमद की खुशी में तुम्हें गुन गाते हुए जाना है, नगमे अलापा कर
करते हुए जाना है। जब हजरत जिब्राइल को इतना कहा है, हजरत जिब्राइल है मुस्तफा की खुशी में नगमे गाते चले जा रहे हैं, गुनगुनाते चले जा रहे हैं। तमाम फरिश्ते गुनगा रहे हैं मुस्तफा की आमद के। वो कौन सी आमद है, कोई खामोश नहीं बैठेगा। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। आज जो भारत के अंदर जो बोला जाता है, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, और ये नारा किसी बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने नहीं दिया है, बल्कि खुदा के फरिश्ते जिब्राइल। ये नारा किसी और ने नहीं दिया है, ये फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने दिया है। बुखार लग गया, खत्म कर ली जाए, बोलो अगर कहो तो खत्म कर लिया जाए, लेकिन आज नबी की आमद आमद है। हज़रत जिब्राइल है तमाम फरिश्तों की जमात लेकर मुस्तफा के दयारे मोहब्बत में जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर जा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला की हवेली पर जा रहे हैं। तमाम फरिश्ते हैं जिस तरीके से खाना-ए काबा का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से हजरत आमना के घर का फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। अब लेकिन मुझे बताओ, तवाफ तो खाना-ए काबे का हुक्म है, लेकिन हजरत आमना के घर का तवाफ क्यों किया जा रहा है? तुमको मालूम नहीं है? तुम्हें क्या पता है? उस नज़दीकी औलाद को क्या मालूम है? तुम तो फतवे हम पर लगा सकते हो, हजरत इमाम अहमद रज़ा पर लगा सकते हो, लेकिन फरिश्तों पर कौन सा फतवा लगाओगे? क्योंकि फरिश्ते जान रहे हैं वो काबा है कि जिसका तवाफ सारी दुनिया कर रही है, लेकिन आमना की गोद में वो आने वाला है जो काबे का भी काबा है। इसीलिए बरेली का ताजदार बोला, बरेली का ताजदार है, पुकार कर कहता है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब हजरत जिब्राइल है तमाम फरिश्तों को साथ में लेकर हजरत आमना के घर का तवाफ कर रही है। उस वक्त हजरत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते क्या देखते हैं, अचानक काबा झुक जाता है, अचानक काबा झुक गया। तो अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? एक कबीलाए बनु कुरैश के सरदार है और खाने काबे के मुतवल्ली भी है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए, क्योंकि अगर काबे में कोई जरूरत अखराजात होते थे तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ही पूरा करते थे, क्योंकि देखभाल खाने काबे की चाबियां किसी और के हाथ में रही थी, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में थी। अब खाने काबे का तवाफ करते करते क्या देखते हैं, अचानक काबा झुक गया है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान और परेशान है, क्या किया जाए? गरीबी का आलम है, अगर ये गिर गया तो ईंटें टूट जाएंगी, दीवारें रेजा हो जाएगी, मुफलिसी का आलम है, तो कैसे इसकी ताबीर होगी, कैसे इसको बनाया जाएगा? दरवाजे पर खड़े होकर एक लौंडी ने आवाज दी है, एक खातिमा ने आवाज दी है, एक खातून ने आवाज दी है, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारा पोता पैदा हुआ है। जब इतना कहा है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पुकार कर कहते हैं, चारों तरफ ताक कर कहते हैं कि ये काबा कहीं और नहीं झुका है, ये मेरे मकान की तरफ झुका है, ये गिरने वाला नहीं है। क्योंकि वो जान रहे हैं और ऐलान करते हैं, मक्का के दरो दीवार सुन लो, ऐ मक्का वालों सुन लो, ये काबा झुका नहीं है, बल्कि मेरे पोते मोहम्मद अरबी की बारगाह में झुका है। इसलिए बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है कि तेरी आमदी के बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी आमदी के बैतुल्ला मजरे को झुका, तेरी हैबती के हर वो थरथरा कर रह गया, तेरी हैबती के हर वो थरथरा कर रह गया। अब हजरत अब्दुल
मुत्तलिब है कहाँ जा रहे हैं? हजरत आमना के घर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी आन बान से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने मकान की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि जान रहे हो वक्त नहीं है गुफ्तगू की जाए, क्योंकि जब भी मैं आया हूँ तो ऐसे ही मौके पर आया हूँ कि डबलिंग हुई है, ट्रिपलिंग हुई है, तो तभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन याद रखना, जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब माने खुशी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, देखते क्या है कि दो हवलदार वहां पर तलवार इस तरीके से लगाकर खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो फरिश्ते के वो फरिश्ते नूरानी फरिश्ते हैं, ढकेल कर बाहर कर देते हैं। कहा तो एक मकान मालिक मैं हूँ, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बोले कोई हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते हो। अब फरिश्ते कहते, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे नहीं जानते हो, एक कबीलाए बनु और कबीलाए कुरैश का मैं सरदार हूँ और काबे का मुतवल्ली हूँ, अब्दुल मुत्तलिब हूँ। मकान मेरा है, पोता मेरा पैदा हुआ है, मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? बोले अभी नहीं जा सकते हो, इसलिए कि जानते हो बेटा तुम्हारा होगा, पोता तुम्हारा होगा, मकान तुम्हारा होगा, लेकिन आमद खुदा के महबूब की है, आमद खुदा के महबूब की है। वो पोता तुम्हारा बनकर आ रहा है, लेकिन वो पोता वो महबूब खुदा का बनकर आ रहा है। लेकिन उसी खुदा का फरमान है कि जब उसका महबूब धरती पर आए, पहले आसमान वाले दीदार करेंगे, बाद में जमीन वाले। वक्त नहीं है गुफ्तगू की जाए। याद रखना कि जब नबी की आमद हुई है तो दुनिया की हर अशया मुस्कुरा रही है, दुनिया की हर चीज़ मुस्कुरा रही है। लेकिन आज बेबस की गंदी औलादें कहती है नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। लेकिन याद रखना, जो नबी पैदा होने से पहले भी नबी था, जो नबी दुनिया में कुछ नहीं था तब नबी था, तो मुझे बताओ 40 साल के बाद कैसे नबूवत मिलेगी? अगर नबूवत तुम्हें नापना है मुस्तफ़ा की, तो जान रहे हो बुलबुल सिदरा से पूछ लो कि नबी की उम्र कितनी है, क्योंकि जान रहे हो तुमको कुछ नहीं मालूम नबी की ज़िंदगी कितनी है, नबी की उम्र कितनी है, और नबी कब से नबी है। जहाँ ना कब था ना तब था, दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी, ना आसमान था ना धरती थी। अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया मैं अपने रब होने का भी ऐलान नहीं करता। जन्नत को सजाया तभी अपनी रबूबियत का खुतबा पढ़वाया, उससे पहले कभी खुतबा नहीं पढ़वाया, क्योंकि खुदा ने ऐलान कर दिया ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान नहीं करता। अब अंदाजा यहीं पर लगा लीजिए, 40 साल के बाद नबूवत मिली है, नजर की औलाद कहती है माज़ल्ला इस तरीके की गुफ्तगू करती है। अगर तुम्हारे मोबाइल में कैलकुलेटर है, नबी की जिंदगी नोट करने वाले नोट कर लो। मेरे पैगंबर की बारगाह में जब हजरत जिब्राइल आए, मेरे पैगंबर ने फरमाया ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल हाथ जोड़कर कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें याद नहीं है। लेकिन आज मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ बड़ी सादगी दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है, कैसे मैं गुफ्तगू करूँगा। अब अंदाजा यही लगा लीजिए। अब हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें याद नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। अब नबी फरमाते हैं जिब्राइल तुम्हें कुछ तो एहसास होगा कि मेरी उम्र कितनी है। कहा या रसूल अल्लाह हरगिज मालूम नहीं है। कहा कुछ तो एहसास होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो निशानियां ज़ाहिर हुई होगी, पता होना। कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी नहीं मालूम है, हाँ अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ ठीक आसमान के नीचे एक सितारा चमकता था जो 70,000 की बरस के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। जब इतना कहा है मेरे पैगंबर ने फरमाया ए जिब्राइल अपनी निगाहें उठाओ और मेरी आंखों से आंखें मिलाओ। जैसी पेशानी ये नबूवत पर जब हजरत जिब्राइल की निगाह पड़ी है और पढ़ने के बाद कहा या रसूल अल्लाह ये कोई सितारा है जो मेरी निगाहों के सामने है, वो आप ही नजर आ रहे हैं। वो कोई सितारा और नहीं था, वो सितारा या रसूल अल्लाह आप ही है, वो नूर आप ही है जो सितारे की मानी चमक रहे थे। जिब्राइल कदमों पर गिर गए और गिरने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हवेली हकीकत को भी जानते हैं। या रसूल अल्लाह बताइए ना आप एक मर्तबा चमकते थे 70,000 बरस के कहाँ रहते थे और 70,000 बरस के बाद क्यों चमकते थे? इतने लंबे अंतराल में आप कहाँ रहते थे? कुछ तो मुझे बताओ। तो
तो इतने में मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है, जब मैं सजदे में जाता हूँ तो नजर नहीं आता हूँ, जब मैं सजदे से सर को उठाता हूँ तो मेरा नूर सितारे के मानी चमकता हुआ नजर आता है। आज यही वजह है कि अल्लाह के महबूब का नाम आसमानों में अहमद है और धरती पर मोहम्मद है। और अहमद वो है जो सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ की हो, और मोहम्मद वो है जिसकी तारीफ खुदा ने जान रहे हो। अहमद वो है जिसने खुदा की सबसे ज्यादा हमद गाई हो, और मोहम्मद वो है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ खुदा ने की। हमारे नबी वो है जिसका नगमा खुद खुदा पड़ता है, जिसकी तराने खुद खुदा पड़ता है। परवरदिगारे आलम से दुआ है कि परवरदिगारे आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और इस मिलाद मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। सबों का उठना बैठना और जिस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया है, परवरदिगारे आलम सब के हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और उसका सबों को उज़्र अता फरमाए, और इस महीने के फैज़ व बरकत से हम सबों को मामूर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।